Today we are honored to have Dr. Supriya Pathak to speak on the occasion. Thank you very much, ma'am, for accepting our invitation. We warmly welcome you. I'm Veronica, faculty member at GSTS ITM University. This is a platform to promote understanding of the dynamics of society with a quest for freedom, justice, equality, and fraternity. It focuses on knowledge and dialogue among concerned persons. GSTS warmly welcome our distinguished guests who are here with us this evening. I would also like to acknowledge the presence of a mentor at GSTS, Professor Nankishore Acharya, who needs no introduction, but as we all know, he is primarily India's renowned poet and writer. Warm welcome, sir. It's a pleasure for GSTS team to have you all with us. I can see Professor Meera Chakravarti as well. Warm welcome to you, ma'am. It's my pleasure and honor to guide today's dialogue with Dr. Supriya on the theme, International Women's Day, Indian Context and Meanings. While today is certainly not the day to discuss women, today, of course, give us a platform to come together like this to celebrate achievements of women's movement across economic, social, political, and cultural spheres thus far, and deliberate on issues or challenges that remains, and of course, to look for a way forward. Before we start, let me give a brief introduction of a speaker. Dr. Supriya Pathak is an associate professor and head Department of Women's Studies, Mahatma Gandhi International Hindi University. She did her MA, MPhil, and PhD on women's issues from the same university. She specializes in nationalism, colonialism, and gender, feminist theories, women, media, cinema, women and theater, language and literature, feminist research techniques. She's the author of plus other research contributions in edited books, journals, and magazines. So certainly we have the right person to talk to us on this occasion of International Women's Day. But just a minute before we start, I would like to lay down some practical guidelines to ensure a smooth discussion. As the talk goes, the speaker, but after the talk, of course, Dr. Supriya would be speaking for 40 minutes or so. उपस्थित मेरे परम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य सर को मैं सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ। उसके साथ ही मीरा चक्रवर्ती मैम जो मुझे देख रही हैं और मेरी बात सुनने के लिए यहाँ आई हैं, और इस ऑनलाइन मोड में उपस्थित सभी सहभागियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह जो विषय है यह बहुत ही रोचक विषय है। रोचक विषय मेरी दृष्टि में इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा शब्द है, ऐसा फेनोमेनन है आज की डेट में जो कि मार्च प्रारंभ होते ही हम सब के जहन में घूमना शुरू हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज एक विचारधारा, आज एक प्रतिबद्धता और स्त्रियों के अधिकारों की बातों से कहीं ऊपर जाकर बाजार की भी चीज बन चुका है। और भले ही हमें किसी और चीज की जानकारी हो या ना हो, या हम खुद भी उसके लिए अवेयर हो या ना हो, लेकिन मीडिया के विभिन्न स्रोत हमें बता देते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो यह एक तरफ से बहुत सकारात्मक चीज भी है, लेकिन उसके साथ ही जब भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बातचीत की शुरुआत में करती हूँ या जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं मेरे दिमाग में आती हैं और कई तरह की प्रतिक्रियाओं से मैं गुजरती हूँ। खासतौर पर इस महीने में जब किसी एक महीने को या किसी एक दिन को सिंबलाइज किया जाता है कि यह हम महिलाओं का दिन है, और आज के दिन पूरी जो स्त्री शक्ति है वह अपने तरीके से इस दिन का और इस पूरे महीने का जश्न मनाती है कि हम महिलाएं हैं। और कल मैं एक कार्यक्रम में थी SNDT मुंबई विश्वविद्यालय के, उस कार्यक्रम के दौरान भी इस पर व्यापक चर्चा हुई और उस चर्चा के साथ ही मैं आपकी इस बात को शुरू करूंगी कि 8 मार्च के दिन महिला होने की जो अनुभूति है, उस अनुभूति के साथ जो हमारे साधारण अचेतन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो समझ उभरती है, उस समझ के साथ मैं स्त्री हूँ, मैं अबला नहीं हूँ,
मैं सबला हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सृष्टि की निर्मात्री हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मुझे जागृत होने की जरूरत है, इस समाज को जागृत होने की जरूरत है। इन सारे वाक्यों के साथ, इन सारी अभिव्यक्तियों के साथ हम महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। एक यह अभिव्यक्ति है जो स्त्री समाज की तरफ से निकलती है, चाहे वह पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज हो, कामकाजी महिलाओं का समूह हो, या आम गृहिणियां हो, उन सब की तरफ से यह एक अभिव्यक्ति निकलती है। और उसी समय पुरुष समाज की तरफ से हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जो अभिव्यक्तियां आती हैं, वह भी बहुत रोचक है कि अरे यह तो आपका महीना है, अरे यह तो आपका सीजन है, यह तो आप लोगों का दिन है, और आप लोग मनाइए। और यह दोनों ही प्रतिक्रियाएं सुनती हुई मैं थोड़ी चिंतित होती हूँ। स्त्री अध्ययन के विद्यार्थी के रूप में मैं चिंतित होती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मायने क्या है, हम इसे कैसे समझते हैं, या हम इस समाज को कैसे समझते हैं, हम इस समाज को लेकर हमारी जो चिंताएं हैं, एक सुंदर समाज के निर्माण को लेकर हमारी जो कल्पना है, उस कल्पना में हम स्त्री पुरुष संबंधों को किस रूप में देखते हैं। क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जो विरोधाभासी हो, जहां पर पुरुष सत्ता जो आज है हमारे समाज में, उसकी जगह हम मातृ सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो उलट देने भर से दुनिया बदल जाएगी और दुनिया अच्छी हो जाएगी, दुनिया के स्त्रियों के लिए सुंदर हो जाएगी, यह परिकल्पना, या यह परिकल्पना कि औरतों का तो सिर्फ एक दिन होता है और इस दिन आप उन्हें चाहे जो जिस भी तरीके से चाहे खुश कर सकते हैं और उसे महिला दिवस का नाम दे सकते हैं। ये इस तरह की चिंताएं इसलिए भी उठती हैं क्योंकि अंततः प्रतिक्रिया स्त्री समाज की तरफ से आए या पुरुष समाज की तरफ से आए, वह कहीं से भी एक समान, एक आदर्श और एक सुंदर समाज की रचना का स्वप्न नहीं। हमारा समाज सुंदर तभी बनेगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही इस समाज के निर्णायक तत्व के रूप में, इस समाज को चलाने वाले सहभागी तत्व के रूप में एक दूसरे के साथ सहकार का रिश्ता निभाते हुए इस समाज को आगे चलाएंगे, क्योंकि यह देश गांधी का देश है और इसलिए इस देश में संघर्ष के साथ सहकार का रिश्ता उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह हम कल्पना करते हैं। इसलिए भारत जैसे देश में स्त्री अध्ययन या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या स्त्रीवाद, इन दोनों ही चीजों की क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या अर्थवत्ता है और क्या इसकी जरूरत हम किस रूप में महसूस करते हैं, इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आती है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, यह चिंता मेरे दिमाग में हमेशा ही रहती है कि हम किस तरह के समाज निर्माण की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी दुनिया किस तरह का समाज चाहती है, जेंडर समावेशी समाज या जेंडर अलगाववादी समाज, चाहे वह पुरुष केंद्रित हो चाहे वह स्त्री केंद्रित हो। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। यह जो विषय है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के भारतीय अर्थ संदर्भ क्या है। सवाल यह है कि महिला दिवस पर हमने भी सारी बात की, महिला दिवस के जो स्रोत हैं वो स्त्रीवाद से निकलते हैं। स्त्रीवाद क्या है इसको समझे बिना, या भारतीय संदर्भों में स्त्रीवाद का क्या अर्थ है इसको समझे बिना इस पर बात करना शायद जल्दबाजी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आवश्यकता भारत में है या नहीं, या उसके भारतीय अर्थ संदर्भ क्या है। स्त्रीवाद मेरी दृष्टि में एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि स्त्रियां भी मनुष्य हैं। फेमिनिज्म इज a notion that women are people। और इस एक सूत्रवाक्य के साथ स्त्रीवाद की शुरुआत होती है, और यह सूत्रवाद अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर हम यह मान रहे हैं कि स्त्रियों की धारणा इस बात में है कि हमें भी मनुष्य समझा जाए, हमें भी मनुष्यता की श्रेणी में शामिल किया जाए, इसका मतलब यह है कि समानता का जो दावा है, समानता का जो स्वप्न है, वह अभी कोसों दूर है। अभी स्त्रियों को मनुष्य समझा जाना ही बाकी है, स्त्रियों को नागरिक समझा जाना ही बाकी है, और ज्ञान परंपरा में उनको शामिल किया जाना भी बाकी है। तो जब तक स्त्रियों को मनुष्य के रूप में हम ट्रीट नहीं करेंगे, हम उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक एक सम्यक समाज की कल्पना का स्वप्न अधूरा रहेगा। और इसलिए स्त्रीवाद की भी आवश्यकता है, स्त्रीवादी विचारधारा की भी आवश्यकता है, और स्त्रीवादी विचारधारा के तहत अब इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी अपनी प्रासंगिकता है, अपनी आवश्यकता है।
हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो समाज जाने अनजाने जेंडर असमानता पर आधारित समाज। हम लाख कह लें कि हम एक बेहतर समाज में रह रहे हैं, हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष के बीच कोई भी भेद नहीं होता और स्त्रियां बिल्कुल पुरुषों की तरह बराबर हैं, उनको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। यह आदर्श वाक्य में तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में हम हर स्तर पर, चाहे वह सांस्कृतिक स्तर हो, चाहे वह सामाजिक स्तर हो, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, स्त्रियों को हम पिछड़ते हुए देखते हैं। और यह जो पिछड़ापन है या स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझे जाने की जो प्रवृत्ति है, इसकी जड़ें दरअसल हमारी ज्ञान परंपरा में है। और जब तक हम उन जड़ों को नहीं खंगाल लेते हैं, तब तक जेंडर असमानता या महिला दिवस की ही प्रासंगिकता प्रश्नांकित होगी हमारे सामने। महिला दिवस और या स्त्रीवाद, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भारत में जो स्त्रीवाद है, दरअसल भारत में स्त्रीवाद जैसे किसी विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर स्त्रियों की देवी के रूप में पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों को का पालन पोषण गुड़िया और परी की तरह किया जाता है, जहाँ पर स्त्रियां पिताओं की और अपने भाइयों की लाडली होती हैं और उन्हें बहुत प्यार दुलार से पाल पोस कर किसी और के घर विदा कर देते हैं। और प्यार दुलार से पाली हुई पोसी हुई जो बच्ची है, उसके साथ कोई हिंसा नहीं होती है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और वह बच्ची हमारे समाज में एक पूजनीय वस्तु के रूप में, श्रद्धा के रूप में और अनगिनत रूपों में हमारे सामने आती है। लेकिन हिंसक रूप से यह समाज जो है अपनी स्त्रियों के प्रति हिंसक है, यह मानने के लिए भारतीय समाज तैयार नहीं होता है। तो जब हमारा समाज यह मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि महिलाओं के प्रति किस तरह की हिंसा हो रही है, हाँ, हमारा समाज यह जरूर मानता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो या अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो यह जो त्रासदी है स्त्री जीवन की, उसे तो वो स्वीकार करता है, लेकिन वह एक हिंसक समाज के निर्माण में जाने अनजाने स्वयं भी भागीदार है। यह भारतीय समाज का जो सामान्य तबका है, भारतीय समाज का जो अवचेतन है, वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जिस समाज में बराबरी का दर्जा, समानता का पूरा विमर्श और स्त्री सशक्तिकरण की पूरी बात यहाँ पर आकर ठहर जाती हो कि हमें इस तरह के विमर्शों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे विमर्श, यह जो सारा का सारा आपका फेमिनिज्म का टंटा है, या ये कहें कि फेमिनिज्म की जो थोथरी बातें हैं, वह भारतीय समाज पर लागू नहीं होती हैं। और इस तरह के पूर्वाग्रह से भरे हुए अवधारणाओं के बीच, ऐसे बुद्धिजीवियों के बीच, या एक समाज में हमें जब रहना हो जहां इसकी आवश्यकता को बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया जाए, तब यह समझाना जरूरी होता है कि भारत में पनपा स्त्रीवाद पश्चिम की कार्बन कॉपी नहीं है। हमने पश्चिम का अनुकरण नहीं किया है, बल्कि भारत में स्त्रीवाद की जड़ें बहुत गहरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय फेनोमेना है जिसके साथ हम भी हैं, और हम भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसे 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सारी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया, इसलिए हम उसके सहभागी हैं। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में स्त्रीवाद आयातित विमर्श के रूप में हमारे सामने आया, बल्कि भारत में स्त्रीवाद की जड़ें गौतम बुद्ध और आनंद के संवाद में निहित हैं। जब पहली बार गौतम बुद्ध से आनंद बुद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने की सिफारिश करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे धर्म में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए, और इसको लेकर आनंद और बुद्ध के बीच पर्याप्त बहस होती है, लेकिन अंततः आनंद जीतते हैं और बौद्ध धर्म में गौतमी के रूप में प्रथम महिला का आगमन होता है और वो बौद्ध धर्म धारण करती है। हमारे स्त्री और पुरुष की समानता का जो विमर्श है, वह हमारे पौराणिक आख्यानों में, हमारे मौखिक आख्यानों में, हमारी लोक परंपराओं में विविध रूपों में देखने को मिलता है, जहां पर स्त्रियां दोनों ही रूपों में मौजूद है और स्त्रियों के प्रश्न भी दोनों रूपों में मौजूद है। एक जो वर्चस्वकारी विमर्श है जिसमें स्त्रियों को कमजोर समझा जाता है, और दूसरा वह विमर्श जिसमें स्त्रियां भी अपने प्रतिरोध का स्वर दर्ज करती है और प्रतिरोध और उस ज्ञान पूरी परंपरा में अपने सकारात्मक हस्तक्षेप को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए हम गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद को ले सकते हैं, जो यह कहते हैं कि महिलाएं निरक्षर होती हैं, महिलाओं के पास बुद्धि और विवेक नहीं होता, महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती हैं, आखिर तुम्हें आता क्या है। उन्हें उन तमाम
ऐतिहासिक तथ्यों को जानना और समझना चाहिए कि भारत में ऋषिकाओं की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिस परंपरा में महिलाओं ने शास्त्रार्थ भी किया, महिलाओं ने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन भी किया और महिलाएं ज्ञान परंपरा में बहुत अग्रणी स्थान पर रही। कालांतर में धीरे धीरे कई ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में, उनकी सामाजिक स्थिति में लगातार गिरावट आई और उसको समझने की भी आवश्यकता हमको है कि क्यों ऐसा हुआ कि एक ऐसा समाज जिस समय स्त्रियों और पुरुषों को बराबर के अधिकार हासिल थे, उस समाज में आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से आज हम 2024 में स्त्री विमर्श की अर्थवत्ता, उसकी प्रासंगिकता या उसके भारतीय संदर्भ में उसका कोई मायने है या नहीं है, इस पर आज भी हम बहस कर रहे हैं। इसको समझने और इसको जानने के लिए इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो पश्चिम के देशों की उपज के रूप में पूरी दुनिया भर में माना और जाना गया, उसकी जड़ें भारत में समानांतर रूप से कैसे पड़ी, कैसे ठीक उसी समय जिस समय 1792 में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट अपनी पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखती हैं। ये वो समय है जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और ब्रिटेन में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट प्रथम नारीवादी लेखिका के रूप में इस पुस्तक की रचना करती हैं और वो इस बात को उठाती हैं कि हमारा जो समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति में अवनति हो रही है, वो डिटोरिएट हो रहा है और अगर महिलाओं को समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं तो वह भी सामाजिक जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकती है, वो एक बेहतर माँ बन सकती हैं, वो एक बेहतर पत्नी बन सकती हैं और वह रूसो के ज्ञान के उस पूरे दर्शन पर सवाल उठाती हैं जिसमें रूसो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग किस्म की शिक्षा की बात करते हैं और इस अलग किस्म की शिक्षा के बजाय हमेशा मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट समान शिक्षा की पैरवी करती है और वो कहती हैं कि अगर स्त्रियों को भी पुरुषों की समान शिक्षा दी जाएगी तब उनके अंदर भी जो तार्किक क्षमता है उसका विकास होगा और उस तर्क क्षमता का इस्तेमाल वो एक बेहतर गृह, एक बेहतर माँ, एक बेहतर प्रेमिका बनने में कर सकेंगी और पूरी दुनिया में अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन को पहली नारीवादी आधिकारिक नारीवादी दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। जब ये ब्रिटेन में हो रहा है, जब ये पश्चिम के देशों में हो रहा है, ठीक उसके बाद 1817 में एक किताब लिखते हैं जेम्स मिल साहब, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वह किताब हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वह इसलिए मायने रखती है क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल अपने अपने पूरे ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स के साथ, अपने पूरे ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट के साथ यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि भारत जैसे देश आज भी शासित किए जाने इसलिए हैं क्योंकि वह अपने महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, वह हमारी तरह अपनी महिलाओं को कंपेनियन नहीं मानते हैं, अपनी महिलाओं को पार्टनर नहीं मानते हैं, बल्कि उनके यहाँ अपनी महिलाओं के साथ दासियों की तरह, गुलामों की तरह बर्ताव किया जाता है। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नियों को, अपनी महिलाओं को जलाकर मार डालते हैं और वो सती प्रथा का जिक्र करते हैं और बहुत ही विद्रुप तरीके से वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। और यह जंक्शन है जब भारतीय समाज में स्त्री प्रश्नों के साथ बातचीत शुरू होती है। पार्थ चटर्जी जो एक बड़े इतिहासकार हुए, वह अपने महत्वपूर्ण आलेख द नेशनलिस्ट रेजोल्यूशन ऑफ वुमेन क्वेश्चन में इस बात उठाते हैं कि भारत में स्त्री प्रश्नों की शुरुआत राष्ट्रवाद के विमर्श के साथ होती है और राष्ट्रवादी विमर्श इस बात से शुरू होता है कि हमने तमाम बुराइयां सही, हमने तमाम कमियां सही, आपके साथ शासित होने के लिए हम तैयार हैं, सामाजिक जीवन में आपकी दास्ता को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं, बावजूद इसके अपने आंतरिक मामलों में हम आपके हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और स्त्रियां इस देश का आंतरिक मसला थी जिस पर जेम्स मिल साहब ने अपनी उच्चता को साबित करने का प्रयास किया था। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और रुचिकर बात भी ये है कि ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स जिस तरह स्त्री को कटघरे में लाकर, स्त्री को केंद्र में लाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रश्नांकित करने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद भी स्त्री के केंद्र में रखकर यह बताने का प्रयास कर रहा था कि आपने जिस तरह से हमारी स्त्री को प्रस्तुत किया है, हमारी स्त्रियां उस तरह की नहीं हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है,
स्त्रियों को देवियों के रूप में स्थान प्राप्त है और हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। तो जेम्स मिल साहब की जो किताब थी, उस किताब के बाद भारतीय नवजागरण या भारत में स्त्री प्रश्नों के बाद भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, इन तमाम चीजों को आप एक साथ उभरते हुए देख सकते हैं। तो आप देखिए कि मैं एक आप लोगों के सामने एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी धारणाएं या जिनका भी ये मानना है कि भारतीय स्त्री विमर्श जैसा कोई डिस्कोर्स भारत में नहीं है और इसका इतिहास भारत में नहीं मिलता है, बल्कि यह पूरा का पूरा विमर्श पश्चिम से आया है। मैं यह समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जिस भी समय पश्चिम के देशों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक उसी समय भारत में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं और उनका वैश्विक दुनिया के साथ एक गहरा रिश्ता है। 1792 में मैरी वोllstonecraft की इस किताब का आना, 1817 में जेम्स मिल साहब की इस किताब का आना और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होना, यह संयोग मात्र नहीं है। और परिणाम क्या होता है कि 1829 में हमारे यहाँ सती प्रथा निषेध की जाती है। जेम्स मिल साहब की किताब का असर यह होता है कि भारतीय राष्ट्रवाद बहुत मुखर तौर पर स्त्री प्रश्नों के प्रति सजग होता है और इस बात की जरूरत महसूस करता है कि हम अपने आंतरिक मसलों का सुधार स्वयं करेंगे और इसके प्रथम प्रयास के रूप में हमको राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा पर निषेध होता हुआ दिखता है। तो दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका फल भारत में किस रूप में निकल कर आ रहा है, उसका परिणाम किस रूप में निकल कर आ रहा है, स्त्रियों की दृष्टि से यह देखना बहुत ही रोचक है। उसके बाद 1848 जब जर्मनी में कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे हैं, जब जर्मनी की सड़कों पर कामगार महिलाएं काम के घंटों के लिए, क्रच की सुविधाओं के लिए और अपने लिए समान वेतन के अधिकार के लिए परेड कर रही हैं, अपना संघर्ष लेकर आगे बढ़ रही हैं, ठीक उसी वक्त 1848 में भारत में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले अछूत कन्याओं के लिए पाठशाला की स्थापना कर रहे हैं। पूरा विश्व जब वर्ग को लेकर संघर्षरत है, वर्ग के सवालों को लेकर संघर्षरत है और कार्ल मार्क्स जैसा व्यक्ति वर्ग के सवाल को उठा रहा है, वर्ग मुक्ति की और क्रांति की बातें की जा रही हैं, ठीक उसी समय हमारे हिंदुस्तान में जाति एक महत्वपूर्ण मसले के रूप में उभरती है और यह माना जा रहा है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था कायम रहेगी, तब तक चाहे दलितों के प्रश्न हो, चाहे महिलाओं के प्रश्न हो, उनका समाधान नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और ठीक उसी समय हिंदुस्तान में जो हो रहा है, उसके बीच एक कनेक्ट बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि 1848 में जब सेनेका फॉल कन्वेंशन हो रहा है, जो महिलाओं के लिए हो रहा है, ठीक उसी समय हिंदुस्तान में 1847 में बंगाल में काले कृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना हो रही है, जहां पर महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब कि पश्चिम की दुनिया में जो जो कुछ घटित हो रहा था, उसके बरक्स भारत में उसके समानांतर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और भारत का बौद्धिक समाज आत्मविश्लेषण करते हुए अपने समाज की समस्याओं और अपने स्त्री प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहा है। यह कोई वैश्विक आंदोलन नहीं हो रहा था, यह भारतीय थे जिन्होंने इस बात की जरूरत को महसूस किया कि सती प्रथा एक हिंसक प्रथा है, एक अमानवीय प्रथा है, विधवाओं का पुनर्विवाह न किया जाना एक अमानवीय प्रथा है और महिलाओं को अशिक्षित रखा जाना भी अमानवीय और एक हिंसक समाज की निशानी है। इसलिए स्त्री प्रश्नों पर बहुत पुरजोर ढंग से काम शुरू होता है। यह अलग बात है कि ये जितने भी सुधार आंदोलन हो रहे हैं, उन सब का नेतृत्व भारत का पुरुष समाज कर रहा है। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, माइकल मधुसूदन दत्त जैसे महत्वपूर्ण लोग जो इंग्लैंड से जाकर बैरिस्ट्री पढ़कर लौटे हुए लोग हैं, उन्हें जब ये बात महसूस हो रही है कि उनको अपने समाज में बदलाव की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, तो स्त्री प्रश्नों पर वह सुधार कर रहे हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि यह कुछ अंग्रेजीदा लोग नहीं थे, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी लोग थे, हिंदुस्तान की संस्कृति से परिचित लोग थे और वो इस संस्कृति के हवाले से ही उन्हीं शास्त्रों की मदद से इन सारी प्रथाओं को कुप्रथाओं के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे और उसके निराकरण के लिए उसके समाधान ढूंढे जा रहे थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जब 1859 में चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
की रचना कर रहे हैं और 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर हो रहा है। ठीक उसी समय हिंदुस्तान में 1857 में का प्रथम भारतीय संग्राम होता है। ठीक उसी समय 1862 में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर कानून बना पाने में सफल होते हैं और विधवाओं के पुनर्विवाह को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है। यह वैश्विक स्तर पर एक साथ चल रही दो घटनाएं हैं। एक हमारी स्थानीयता में घटित हो रही है, दूसरे विश्व के पटल पर घटित हो रही है, लेकिन दोनों का आपस में बहुत गहरा जुड़ाव है। 1869 जब लियो टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस की रचना कर रहे हैं, उसी समय भारत में स्त्री शिक्षा अपने जोरों पर है। ठीक उसी समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की तैयारी की जा चुकी है और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है औपचारिक तौर पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए। यह अपने आप में, मैं ये तस्वीर आप लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि हम यह देखें कि भारत जैसे देश में, भारत की अपनी बौद्धिक परंपराओं में, भारत की अपने जनमानस में चेतना का जो स्तर था, उसको किसी भी लेवल पर किसी दूसरे से कुछ भी आयात करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसकी अपने नवजागरण की प्रक्रियाओं में यह सारी प्रक्रियाएं घटित हो रही थी। 1906 जबकि जापान, बुल्गारिया, क्यूबा, रसिया और अन्य देशों में आप प्रथम लहर के नारीवाद को स्पष्ट तौर पर रेखांकित होते हुए देख रहे हैं। ठीक उसी समय 1909 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते समय गांधी हिंद स्वराज की रचना कर रहे हैं और हिंद स्वराज एक ऐसी रचना थी, एक ऐसा प्रियम्बल था, एक ऐसी प्रस्तावना थी जो आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर हमारे सामने, उसकी कल्पना गांधी कर रहे हैं। और यह 1909 का समय है जब उनकी चिंताएं भारत को लेकर कई दृष्टियों से है। भारत के राजनीतिक जीवन, भारत के सामाजिक जीवन, भारत के आर्थिक जीवन को लेकर गांधी एक प्रस्तावना रच रहे हैं। ठीक उसी समय जब बाहर की दुनिया में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म अपने पंख फैला रहा है। इसके पहले भी गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे हैं और कस्तूरबा के नेतृत्व में वह विवाह को वैध बनाने का आंदोलन कर रहे हैं, तब वहां की महिलाओं को वह एकजुट होकर एक साथ सड़कों पर उतरते हुए देख चुके हैं और वह इस चमत्कारिक शक्ति को हिंदुस्तान में भी उभरता हुआ देखना चाह रहे हैं। 1910 जब 1909 और 1910 के बीच का समय, जब भारत में, जब दुनिया में न्यूयॉर्क शहर में जो सोशलिस्ट पार्टी है महिलाओं की, उसमें क्लैरा ज़िटकिन और अलेक्जेंड्रा कोलंताई काम के घंटे, समान वेतन, क्रैच की सुविधाएं और महिलाओं को समान रूप से ट्रीट किए जाने के लिए आंदोलनरत हैं, जब वह सड़कों पर उतर रही हैं और इस दिन को 8 मार्च को, जिस दिन उन्होंने यह प्रोटेस्ट किया था, इस दिन को वह राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रस्तावना दे रही हैं। ठीक उसी समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम और गांधी के आह्वान पर महिलाओं का भी उस सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में प्रवेश शुरू हो रहा है। तो जो चीजें अमेरिका के में हो रही हैं, जो चीजें ब्रिटेन में हो रही हैं, जो चीजें दुनिया के बाकी देशों में औरतें कर रही हैं, ठीक उसी समय गांधी के भारत आगमन के बाद, महिलाओं के राजनीतिक जीवन में प्रवेश के बाद हमारे हिंदुस्तान में होती हुई भी बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। और 1929 में पहली बार, 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस पहली बार होती है, जिसमें कि दुनिया, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इकट्ठी होती हैं और वो सारी महिलाएं विवाह की आयु, सहमति की आयु के इर्द गिर्द बहस करती हैं और हरबिलास शारदा की अध्यक्षता में कमेटी गठित होती है जो विवाह की न्यूनतम आयु को तय करती है। आप देखिए कि यह कितना इंटरेस्टिंग है कि पूरी दुनिया में महिलाएं, उन देशों की महिलाएं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अधिकार थे, ऑलरेडी जिनका एक एक्सपोजर था, जिनका सामाजिक जीवन में प्रवेश था, जहां पर महिलाओं को पार्टनर समझा जाता था, जहां पर महिलाओं के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, और हमारा हिंदुस्तान जहां पर औरतों को पर्दे में रखा जाता था, औरतों का सामाजिक जीवन में प्रवेश वर्जित था, उन सारी महिलाओं को गांधी सामाजिक जीवन में प्रवेश कराते हैं। तब तक गांधी हमारे देश में संत की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उन्हें महात्मा माना जाने लगा है और आजादी के लिए लड़ी जाने वाली जो लड़ाई है, उसे कोई राजनीतिक युद्ध नहीं माना जा रहा है, बल्कि उसे एक धार्मिक मिशन का रूप ले लिया गया है। और गेल नॉबेट, जो एक बहुत अच्छी फेमिनिस्ट राइटर हैं, वो लिखती हैं कि ये वो दौर है
जब नेशन एक एक्सटेंडेड फैमिली में बदल चुका है। पूरा देश एक बृहद परिवार है और गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। गांधी एकमात्र मुखिया हैं पूरे देश के और गांधी के आह्वान पर हर घर की स्त्री अपने अपने घरों से निकलकर पीक पिकेटिंग का काम कर रही है, शराबबंदी का काम कर रही है, विदेशी कपड़ों की दुकानों के आगे धरना कर रही हैं, घेराव कर रही हैं और ये सब कुछ राजनीतिक कृत्य मानकर नहीं कर रही हैं, बल्कि गांधी बाबा जो कह रहे हैं उसके अनुसार भारत की जनता व्यवहार कर रही है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे वह महिलाएं हैं। लेकिन गांधी वो पहले व्यक्ति हैं जो इस बात को बहुत पुरजोर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस देश को अगर आजादी मिलेगी तो उसका नेतृत्व हमेशा महिलाओं को करना होगा, क्योंकि आजादी जिन मूल्यों के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है वह सत्य और अहिंसा के मूल्य हैं और हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाएं सत्य और अहिंसा इन दोनों ही गुणों की पुरुषों से बेहतर वाहक हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं सत्य को के मूल्य को भी अपनाती हैं और अहिंसा के मूल्य को भी अपनाती हैं। इसलिए आजादी की पूरी लड़ाई का दारोमदार महिलाओं के ऊपर होगा और महिलाओं के बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे, स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकेगी। और अब तक जो यह डिस्कोर्स चला आ रहा था जिसमें महिलाओं को अबला माना जा रहा था, महिलाओं की स्थिति में सुधार के योग्य माना जा रहा था, या इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि महिलाओं को विक्टोरियन महिलाओं की तरह होना चाहिए, उनकी तरह खान पान, उनकी तरह चाल ढाल वेशभूषा अपनानी चाहिए, गांधी इस बात को से बिल्कुल अलग हटकर स्त्रियों की एक बहुत जबरदस्त छवि प्रस्तुत करते हैं और वो छवि है जिसमें वो महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सौंपते हैं और वो कहते हैं कि आत्म बलिदानी, अहिंसक और सत्यवादी होने के कारण इसका दारोमदार महिलाओं के ऊपर है और विक्टोरियन महिलाओं को भारतीय महिलाओं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय महिलाओं को विक्टोरियन महिलाओं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि विक्टोरियन महिलाओं को भारतीय महिलाओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और उन्हें अपने देश में लागू करने की जरूरत है। तो यह जो समय है जब हम देख रहे हैं कि गांधी का प्रभाव हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उनके कारण महिलाओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है वह बढ़ती है और इस पूरे आंदोलन में आप 1919 के बाद से लेकर 1947 तक लगातार यह देखते हैं कि गांधी द्वारा चलाए गए लगभग सभी आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है। सिर्फ देश की ही महिलाएं नहीं बल्कि विदेशी स्त्रियां भी गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनती हैं और अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं और यह कोई मामूली बात नहीं थी। प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, जिन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की थी पटना में, उनके यहाँ एक व्याख्यान के दौरान मैं गई थी और मुझे वहाँ बताया गया कि जब इस महिला चरखा समिति की स्थापना हुई और उस दौर में जब महिलाएं खादी के विदेशी कपड़ों की दुकानों के आगे बैठी होती थी तो एक 13 साल की महिला थी जिसे दुकान के सामने लाकर बैठा दिया गया। शाम घिर आई और सब लोग जब अपने अपने घर जाने लगे तो वो महिला रोने लगी। उससे पूछा गया कि तुम क्यों रो रही हो? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो पता ही नहीं। तो सबने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर का पता बताओ, हम तुम्हें पहुंचा देते हैं। उसने कहा मुझे तो अपने घर का भी पता नहीं क्योंकि मेरे पति मुझे यहाँ छोड़ गए हैं और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। एक ऐसी महिला जिसे अपने घर का पता नहीं, लेकिन गांधी के आह्वान पर वह एक ऐसी दुकान के सामने बैठी है जहां पर विदेशी कपड़े बिक रहे हैं। यह गांधी की शक्ति थी जिसने उस सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिला को भी राष्ट्र के साथ जोड़ा और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी का भाव पैदा किया कि इस देश में उसकी भी कुछ भूमिका हो सकती है। यह एक बहुत ही सुंदर तस्वीर थी जो गांधी के दौर में हमने महिलाओं के साथ देखा। आगे बढ़ते हुए अगर हम 1949 में आते हैं, 1949 जबकि फ्रांसीसी लेखिका सिमोन द बोआ की महत्वपूर्ण कृति द सेकंड सेक्स पूरी दुनिया में धूम मचा रही है, स्त्री पुरुष संबंधों पर, स्त्री की स्वतंत्रता पर और स्त्री देह पर उसके अपने नियंत्रण पर पूरी दुनिया में सिमोन एक आइडियल फिगर के रूप में उभर रही हैं। ठीक ये वही समय है जब भारत में महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां लिख रही हैं। ये और बात है कि हिंदी में लिखने की वजह से महादेवी वर्मा सिमोन नहीं बन पाई और पूरी दुनिया में श्रृंखला की कड़ियां को उस रूप में नहीं पढ़ा गया या स्त्री मुक्ति के दस्तावेज के रूप में उस रूप में नहीं देखा गया जिस रूप में सिमोन के दस्तावेज को देखा गया, उसकी पुस्तक को पढ़ा गया। बावजूद इसके भारतीय समाज और संस्कृति के अनुसार महादेवी की यह जो रचना थी श्रृंखला की कड़ियां, वह सिमोन द बोआ से कई गुना आगे है और उस
पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात महादेवी वर्मा कहती हैं कि अब भारत की स्त्रियों को यह बात समझ में आ गई है कि वह गुड़िया नहीं है, वह रूप के जाल में फंसाने वाली कोई स्त्री नहीं है, वह किसी व्यक्ति के इशारों पर चलने वाली कोई महिला नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक स्वतंत्र चेतना है। भारत की महिलाएं जो चाहें वो कर सकती और जाग तुझको दूर जाना जैसी रचनाएं वो करती हैं और उसमें स्त्री शक्ति का आह्वान वो कर रही हैं। ठीक वही समय जब फ्रांस में सिमोन de beauvoir द सेकंड सेक्स लिख रही है। यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है कि यह पश्चिम से आयातित विमर्श नहीं है, बल्कि यह भारत का विशुद्ध विमर्श है, जिसमें सिमोन de beauvoir महादेवी वर्मा भारतीय स्त्रियों की स्थिति के बारे में चर्चा कर रही हैं और उनकी बात कर रही हैं और उनकी मुक्ति की नहीं, बल्कि इस समाज के सुंदर बनाने में स्त्रियों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखे जाने की कितनी सख्त आवश्यकता है, वो इस आवश्यकता पर जोर दे रही हैं। और महादेवी वर्मा आज भी भारत के प्रथम नारीवादी के रूप में जानी जाती हैं। उनकी रचनाओं को आज उनकी रचनाओं का पुनर्पाठ किया जा रहा है और महादेवी वर्मा को सिमोन de beauvoir के साथ देखते हुए उन्हें भारत में नारीवादी प्रश्नों के दस्तावेजकर्ता या उसके प्रस्तोता के रूप में देखा जा रहा है। बात यही खत्म नहीं होती है। भारत में जब 1974 में टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के महासभा पटल पर पेश की जाती है, टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट एक बहुत ही अलार्मिंग, बहुत ही हिस्टोरिकल दस्तावेज है, क्योंकि उस दस्तावेज में, उस रिपोर्ट में यह पहली बार ऑफिशियली बताया गया कि आज़ाद हिंदुस्तान के 27 सालों बाद भी जो बातें महिलाओं से किए गए थे कि आप अपनी लड़ाई को फिलहाल स्थगित रखें, यह हमारे घर का मामला है और जब एक बार भारत आज़ाद हो जाएगा तो स्त्रियों के प्रश्न, दलितों के प्रश्न, आदिवासियों के प्रश्न भी हल हो जाएंगे। टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट इस दावे को प्रश्नांकित करती है और वो कहती है कि आज़ाद हिंदुस्तान के 27 साल बाद भी महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हुई है, क्योंकि उनका लैंगिक अनुपात, श्रम बल में उनकी भूमिका, उनकी शैक्षिक स्थिति, तमाम चीजों में लगातार गिरावट आई है और यह संयुक्त राष्ट्र के पटल से कही जा रही बात है। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि यह स्थिति सिर्फ भारत की महिलाओं की नहीं थी, बल्कि दुनिया के उन तमाम विकासशील देशों की महिलाएं इस स्थिति से गुजर रही थी और अंततः 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने पटल से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की ऐतिहासिकता के महत्व को समझते हुए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में तो घोषित किया ही, लेकिन उसी पटल से उसने दुनिया के तमाम विकासशील देशों को यह निर्देशित किया कि वह अपने देश में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के प्रयास करें और 1975 से लेकर 1985 तक के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में घोषित किया गया। और इस 10 साल में दुनिया के हर विकासशील देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह हम अपने देश में महिलाओं की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो यह एक ऐतिहासिक कार्य था, यह एक ऐतिहासिक उद्घोष था। उसी तरह बीजिंग कॉन्फ्रेंस, उसी समय CEDAW जैसे डिक्लेरेशन का पास होना और उसी समय भारत में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के शिक्षा को उनके एम्पावरमेंट के साथ जोड़कर देखा जाना और इस बात की जरूरत को महसूस किया जाना कि पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विमेन एम्पावरमेंट शब्द पहली बार 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेजों में कोट किया गया और उसमें महिलाओं की शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई कि अगर आप महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। ठीक उसी समय 1982 में उसके पहले ही 1974 में टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के आने के ठीक पहले मीरा देसाई के नेतृत्व में भारत में पहली बार SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई में स्त्री अध्ययन शोध केंद्र की स्थापना होती है और उसका उद्देश्य यह होता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण किया जाए। 1982 में पहली बार UGC भारत के सभी विश्वविद्यालयों में स्त्री अध्ययन का एक सेंटर खोलने की घोषणा करती है और यह जरूरत महसूस की जाती है कि भारत के हर क्षेत्र में यदि स्त्री अध्ययन के केंद्र खोले जाएंगे तो उनका कार्य होगा ICSSR नामक संस्था के साथ मिलकर उन क्षेत्रों की महिलाओं की स्थितियों पर, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और हर स्थिति पर सम्यक आंकड़ा प्रस्तुत करना
उस पर शोध करना और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसके आधार पर जो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स था, जो पॉलिसी मेकिंग हो रही थी, उसमें महिलाओं के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनका एम्पावरमेंट हो सके, ताकि उनको डेवलपमेंट में शामिल किया जा सके, विमेन इन डेवलपमेंट के डिस्कोर्स को स्थापित किया जा सके। इस तरह के प्रयास 1982 में शुरू होते हैं। यह वही समय है जब 1982 में IAWS, इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्टडीज नामक एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना होती है, जिसका कार्य पूरे देश में स्त्री अध्ययन को एक विषय के रूप में पढ़ाने और उसकी जरूरत को महसूस कराने पर का है। और इस बात की जरूरत को महसूस किया गया कि स्त्री आंदोलन एक शैक्षणिक रणनीति के रूप में जब तक एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में विद्यमान, उसकी जनचेतना में विद्यमान जो स्त्री पुरुष असमानता के डोर हैं, उसको काटना मुश्किल होगा। इसलिए एक पाठ्यक्रम के रूप में जब विद्यार्थियों को यह बात पढ़ाई जाएगी, तो यह विषय सिर्फ महिलाओं तक केंद्रित नहीं होगा, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों ही स्त्री अध्ययन जैसे पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और इस समाज में स्त्रियों की स्थिति के प्रति संवेदनशील दृष्टि रखते हुए अपने एक नए समाज के निर्माण की तरफ वो अग्रसर होंगे। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है। 1990 का दशक जब पूरी दुनिया में ब्लैक फेमिनिज्म का डिस्कोर्स उभरता है, एलिस वॉकर इस बात की घोषणा करती हैं कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई एम अ वुमेनिस्ट, बिकॉज द व्हाइट फेमिनिस्ट इज अ रेसियल। वो सिर्फ पेट्रियार्की के खिलाफ तो खड़ी हैं, लेकिन वह रेस डिस्क्रिमिनेशन पे बात नहीं करती हैं। और उनके घरों में जाने के बाद वह अपने घरों में काम करने वाली महिलाओं के साथ, अपने साथ पढ़ने वाली ब्लैक महिलाओं के साथ, अपने साथ काम करने वाली ब्लैक महिलाओं के साथ उसी रेसियल डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के साथ बिहेव करती हैं जिस तरह से एक व्हाइट मैन करता है। तो अगर आप पेट्रियार्की के खिलाफ हैं, तो आपको रेस के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी होना होगा। और पेट्रियार्की एक अम्ब्रेला टर्म होना चाहिए, जिस अम्ब्रेला टर्म में आप क्लास के डिस्क्रिमिनेशन को भी एड्रेस करें, आप रेस के भी डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करें और आप पेट्रियार्की के डिस्क्रिमिनेशन को भी एड्रेस करें। अगर आप ये नहीं कर रही हैं, तो यू आर ओनली अ फेमिनिस्ट who is struggling with patriarchy. So that I am not a feminist, I am a womanist. और वो कलर पर्पल नामक एक बहुत महत्वपूर्ण किताब की रचना करती है। जिस समय दुनिया में ब्लैक फेमिनिज्म का डिस्कोर्स उभर रहा है, ठीक उसी समय भारत में दलित नारीवाद का उदय हो रहा है। और दलित नारीवादी आंदोलन इस बात को महसूस करता है कि भारत में जो नारीवादी आंदोलन है, भारत में जो स्त्रीवाद है, उस स्त्रीवाद के मुद्दे में दलित स्त्रियों के सवाल नहीं है, उनकी जिंदगी के सवाल नहीं है। और दलित होने के कारण वह स्त्रियां जो तिहरे शोषण का शिकार है, एक ओवरऑल पेट्रियार्कल सिस्टम, एक कास्ट सिस्टम और दूसरा अपने पति के पेट्रियार्कल एटीट्यूड, इस तिहरे शोषण के शिकार स्त्री की समस्याएं, उसकी जिंदगी के दुख वही नहीं हो सकते हैं जो कि एक सवर्ण स्त्री के जिंदगी के दुख और उसके मुद्दे हैं। तो सवर्ण स्त्रियों के मुद्दे दलित स्त्रियों के मुद्दों से अलग हैं। हमारा इतिहास आपके इतिहास से अलग है, इसीलिए हमको अपना इतिहास अलग से लिखने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमको अपनी बात डिफरेंटली कहनी होगी। और 1990 में भारत में दलित नारीवाद के रूप में एक तृतीय लहर का नारीवाद उभरता है जो वॉइस ऑफ डिफरेंस को लेकर चलता है और जैसे पायनियर के रूप में शर्मिला रेगे और गोपाल गुरु जैसे विद्वानों का, रजनी तिलक, कुमुद पावड़े, ये तमाम लोग दलित स्त्रीवाद की पैरवी करते हैं और दलित महिलाओं के प्रश्नों को अलग से सुने जाने की पैरवी की जाती है। हालांकि स्त्रीवाद पर यह ठप्पा भी लगता है कि भारतीय स्त्रीवाद जो है वह अपनी पूरी प्रवृत्ति में ब्राह्मणिक है, वह अपनी पूरी प्रवृत्ति में बहुत ही वर्गीय चेतना का शिकार है और उसने कभी भी समाज के हाशिए के तबके की महिलाओं को अपना मुद्दा नहीं बनाया और न ही उनको केंद्र में रखा। इसीलिए अल्पसंख्यक महिलाएं, दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, कामगार महिलाएं, इन सारी महिलाओं को इस ब्लैक सिल्क साड़ी, बड़ी बिंदी वाले फेमिनिस्ट डिस्कोर्स से प्रॉब्लम है और हम इस डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, हम इस फेमिनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए वी टॉक डिफरेंटली। शर्मिला रेगे अपने एक महत्वपूर्ण आलेख दलित वुमेन टॉक डिफरेंटली में इस जरूरत और इसकी अनिवार्यता को प्रस्तुत करती हैं और दलित नारीवाद का जन्म होता है। दलित नारीवाद भारत का मौलिक चिंतन है।
वह पश्चिम से आयातित चिंतन नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि ये पूरी यात्रा तय करते हुए 100, 150, 200 वर्षों की पूरी यात्रा है, जिस यात्रा में भारत में स्त्री प्रश्न अलग अलग समय में, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में, अलग राजनीतिक परिदृश्य में उभरते हैं और स्त्री प्रश्नों पर अलग अलग समय में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। और आज का जो समय है, जिस समय में हम बैठे हैं, 2023 का समय, जिसे 21वीं शताब्दी कहा जा रहा है, उस समय में भी भारतीय समाज में स्त्रियों के सामने, भारतीय स्त्रीवाद के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि इस तरह के विभिन्नताओं के स्वर को, जिसमें दलित स्त्रीवाद अलग है, मुस्लिम महिलाओं के सवाल अलग हैं और अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग वर्गों में बटी हुई स्त्रियों को एक ही मंच पर लाकर स्त्रियों के लिए बात करना, या जिसको हम कहें सार्वभौमिक बहनापे की जो भावना है, सार्वभौमिक बहनापे की जो बात है, उस चुनौती को भारतीय स्त्रीवाद आज भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन भारतीय स्त्रीवाद के लिए यह एक सुंदर संभावना भी है, क्योंकि भारतीय स्त्रीवाद यह मानता है कि यह डेमोक्रेसी की भी सुंदरता है कि आपके पास अलग अलग वॉइसेस हैं, हर किसी के पास अपनी मुक्ति की अपनी चाबी है। दलित स्त्रियों के पास अपनी मुक्ति की चाबी सवर्ण स्त्रियों से भी मुक्ति की चाबी है। तो यह जो विविधता है, यह जो सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंसेस है, यह भारतीय स्त्रीवाद की आज की डेट में एक बहुत बड़ी उसके लिए चुनौती भी है, जिसके कारण भारतीय स्त्रीवाद पर पश्चिम से भी आयातित होने और स्वयं भारत के स्त्रीवादी समूहों द्वारा वर्णीय, वर्गीय और ब्राह्मणिक एटीट्यूड से शिकार होने के आरोप लगते हैं, उनके मुद्दों को नहीं समझने के आरोप लगते हैं। लेकिन यही और इसी चैलेंज के साथ यह संभावना भी है कि भारतीय स्त्रीवाद पूरी तरह अपनी मौलिकता के साथ स्त्री प्रश्नों को लेकर आगे चल रहा है और हमारे समक्ष ग्लोबलाइजेशन जैसी समस्याएं हैं, हमारे समक्ष धार्मिक कठोरता जैसी समस्याएं हैं, हमारे समक्ष स्त्रियों को स्त्रियों से ही लड़ाने की, समलैंगिकता की, यौनिकता के विमर्श की समस्याएं हैं। और उन सारी समस्याओं को स्त्रीवादी समूहों को एकजुट होकर लड़ना है। इसलिए भारतीय स्त्रीवाद न सिर्फ जरूरी है, बल्कि मेरी दृष्टि में अनिवार्य भी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अपनी भारतीय अर्थवत्ता है, अपनी स्वीकार्यता है और अपनी अनिवार्यता है। यह सब, यह बातें हम सबको समझने और इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। मुझसे अगर कोई सवाल होगा तो मैं जरूर उन प्रश्नों का जवाब दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुप्रिया पाठक जी। और बड़ा सुंदर और स्तरीय अकादमिक विवेचन आपने आज किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके भारतीय अर्थ और संदर्भों पर। और इतने कम समय में आपने जिस तरह से पाश्चात्य और भारतीय दृष्टि का विवेचन किया है वो आप में बहुत अनूठा है। हमारे पास समय है प्रश्नोत्तर के लिए, और जो भी सुधीजन प्रश्न करना चाहते हैं वो अपनी बात यहाँ पर कह सकते हैं डॉक्टर सुप्रिया जी से। लेकिन मुझे जब तक सवाल आए तब तक मुझे याद आ रहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस समय सप्त क्रांति की बात कही तो उसमें नर नारी की समानता की बात थी, और आपने कितने सुंदर तरीके से ये बात रखी कि जो रंग भेद है और वो भी लिंग भेद, ये दोनों आपस में किस तरह से उनका संबंध है, इसको आपने बड़े अच्छे से व्याख्यायित किया। और ब्रह्मनिकल जो एक ऑर्डर है इसमें भी जिस तरह का भेद है उसको आपने बड़े सुंदर तरीके से व्याख्यायित किया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद ही दे सकता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि इस पर कुछ बोलूं। मुझे आपका वक्तव्य सुनते समय कमला देवी चट्टोपाध्याय याद आई, जिन्होंने एक लंबा सिलसिला चलाया भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और भी कई नाम। लेकिन आपने बड़े करीने से, बड़े सुंदर ढंग से इतने सारे नाम वैश्विक स्तर के भारतीय संदर्भ के आपने लिए, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पर जो भी सुधीजन जुड़े हैं,
वो यदि कोई प्रश्न डॉक्टर सुप्रिया पाठक मैडम से करना चाहें। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगी, मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं, मुझसे कोई भूल हुई हो या कुछ तथ्यात्मक त्रुटि हो गई हो इस इतिहास को बताने के क्रम में सर, तो मुझे माफ करेंगे। बाकी मुझे आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार। मैम आप अनम्यूट कीजिए। जी, जब तक कोई unmute yourself, ma'am. Hello. Yeah, मैं सुनाई दे रही हूँ? Am I audible? You are mute. Hello. जी मैम आप सुनाई दे रही। हाँ, thank you so much. मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ because जी thank you so much, Dr. Supriya. It was very informative and a deep presentation. When we were telling about that Buddha Dharma, that Gautami's entry and thing, no, one thing was just coming to my mind. Recently, till now, there is a religious sect. I would not like to take the name. The saints know what they do. They're well educated. They do a lot of charity. But when it comes to women, they don't even have an eye contact with them. They don't talk to them. If somebody has to ask something, they have to have a parda and they have to ask something. So if they're traveling and all also, they will not look at the face and they will talk to them somewhere else. They will look and they will do. What is your take on this subject? How we can handle this? This is one question. And one more thing I will just like to share. It is a happy Women's Day to everyone. Recently, I was in a dialogue. I met a young man. He was wearing that toe rings. I was just curious and asked, what for you are wearing the toe rings? He was telling just to show solidarity with my wife. I'm challenging the patriarchy. I feel that we need more men to be with us like this to challenge the patriarchy. That is just a sharing. And thank you so much for this opportunity. Thank you. Very nice. Can I react? Let me respond. Supriya? यस मैम। हाँ, मीरा चक्रवर्ती मैडम। हाँ, थैंक यू जयंत जी, रणदीप जी, वेरोनिका एंड सुप्रिया। आप मुझसे बहुत छोटी हैं, इसलिए मैं सुप्रिया ही बोल रही हूँ। बात ये है कि सुनाई दे रहा है आपको? जी मैम। हाँ, एक तो बात ये है कि जो आपने इतिहास की बात कही वो बहुत ठीक है। इट्स वेरी गुड। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं होगी, पर इसलिए बीच बीच में अंग्रेजी मैं बोलूंगी। आप देखिए कि लेफ्ट पार्टीज ने सीपीआई सीपीएम में इनके कोर ग्रुप में कोई महिलाएं नहीं है, ठीक है। तो ये हमको यानी प्रोग्रेसिव पार्टी होने के बावजूद भी उनके कोर ग्रुप में महिलाएं नहीं है। वृंदा कारट को बहुत दिनों बाद उनको लिया गया, वो भी बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद। ये एक है जो आपको सोचना है कि प्रोग्रेसिव पार्टी होने के बाद भी जो क्लेम करते हैं कि वो प्रोग्रेसिव है, उनकी पार्टी के अंदर भी आपको महिलाएं नहीं मिलेंगी। दूसरी बात अपने इसकी सोशलिस्ट पार्टी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट पार्टी की, मैं क्लारा ज़ेटकिन के साथ साथ आपको रोजा लग्जमबर्ग की भी जो भूमिका है बहुत इम्पोर्टेंट है वो। जी। हाँ, और वो इतनी रेडिकल थी कि उनको खून ही कर दिया, मरवा दिया गया। तो ये जो है प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ वो उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ इस तरह का जो बर्ताव महिलाओं के साथ हुआ, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये तो हो ही नहीं सकता। और मार्क्स ने जो महिलाओं के बारे में, मार्क्स ने कभी महिलाओं के बारे में कुछ कंसर्न नहीं दिखाया है। ये तो फ्रेडरिक एंगल्स हैं जिन्होंने फैमिली एंड
प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में महिलाओं की स्थितियों का विश्लेषण किया। मार्क्स ने कुछ भी नहीं कहा। तो हमको ये लेफ्ट पार्टी या मार्क्स से बहुत काफी शिकायत हो रही है। तो ये क्योंकि हम मार्क्स को रेडिकल कहते हैं, तो रेडिकल होने के साथ साथ ये जो एक्सक्लूजन है, women are totally excluded from his analysis. This is what you have to also note. और ये जो आपने कही कि हाँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जयंत जी ने मेंशन किया उनका, फिर पुपुल जयकर, ये काफी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने, उसके बाद विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने बहुत दिनों से, बहुत उनके अपने लेक्चर्स में आप देखेंगे महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि जिस नारी का अपमान किया जाता है उस देश की कोई प्रगति नहीं हो सकती। तो जब निवेदिता आई तो निवेदिता ने बंगाल में, कलकत्ते में उन्होंने नारी शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह शुरू किया है। तो ये आप देखेंगे कि पैट्रियार्की के ये जो प्लस पॉइंट्स जहाँ हैं वो आप नोट कीजिए। और इतिहास चेतना के बारे में मैं ये बोलूंगी कि महाभारत तो इतिहास है, आप वहाँ देखेंगे कि कितनी महिलाएं हैं जो जागृत हैं, जो दे आर अवेकन women. इफ यू सी शकुंतला की तो कालिदास ने पूरी पलट दी, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें शकुंतला ऐसा है ही नहीं। तो कालिदास brings the patriarchy back, which is very digressive, not progressive at all. And in Mahabharata, Shakuntala is challenging Dushyanta, क्योंकि उन्होंने उनको रिजेक्ट किया, उनके both her and her son. तो वो उनको गालियां देके कहती है अनार्य हो, और आप अनार्य हो, you're a petty person. तो ये जो है, यहाँ पे जो है जस्टिस के लिए लड़ना, द्रौपदी जस्टिस के लिए लड़ती हैं। उन दिनों महिलाएं प्रॉपर्टी होती थी महाभारत के दिनों में, पर महिलाओं के साथ साथ सिर्फ जो ज्येष्ठ है, जो सबसे बड़ा लड़का होता है, उसी को फ्रीडम और राइट्स होते थे। उनके छोटे भाई सभी प्रॉपर्टी ही होते थे। सो युधिष्ठिर के साथ उसके भाई और उसके बीवी ये प्रॉपर्टी बन गए। पर आपको याद रहेगा वो कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे वो जुआ खेला जाता है, डाइस गेम इज एंड द्रौपदी क्वेश्चंस हाउ कैन यू लूज मी बिकॉज यू ऑलरेडी लॉस्ट योरसेल्फ। सो ये जो क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी एंड फ्रीडम, एथिक्स एंड फ्रीडम, द क्वेश्चन ऑफ राइचियसनेस एंड जस्टिस, ये हमारी इतिहास में है। इसलिए मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि इतिहास जानना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है कि इतिहास चेतना आवश्यक बहुत है, इसका हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ आपका पेपर, आपका कंपैरिजन बहुत सुंदर रहा। थैंक यू मैम। मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए था, लेकिन टाइम की अपनी लिमिटेशन थी। और निश्चित तौर पे अलेक्जेंड्रा कोलोंटाई, रोजा लग्जमबर्ग, इन सारे लोगों की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। और मार्क्स ने तो वुमेन को एज ए क्लास रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसीलिए मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की जरूरत पड़ी। और फिर पूरे वेजेस की डिबेट शुरू होती है। मैं उधर जाती तो फिर मैं डिविएट कर जाती, इसलिए मैंने उस पॉइंट को स्टैंड बाइट पे रखा कि एक लाइन बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजों को छोड़ा जाए। लेकिन आपका कहना बिल्कुल वाजिब है मैम, इन सब चीजों पे ध्यान दिलाया जाना चाहिए। हाँ, मुझे दुख ये बात है कि अपने को प्रोग्रेसिव करने के बाद वो लोग इतने डाइग्रेसिव व्यूज देते हैं कि हमें उनको वो स्वीकार नहीं कर सकते। थैंक यू जयंत, थैंक यू। नमस्ते सुप्रिया जी। नमस्ते सुप्रिया जी, बहुत अच्छा वक्तव्य था आपका, बहुत अच्छा लगा सुन के। और आपने जो कंपैरिजन किया वो हिस्टोरिकली भी, और जो मॉडर्न एज में जो आपने सारी चीजें बताई, वो गांधी की हो या अभी जिक्र किया जयंत जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, तो वो वाकई में ऐसे इतिहास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना भारतीय इतिहास में खास तौर से जिन्होंने महिलाओं को लेके बहुत अच्छा काम किया है, भेदभाव दूर रखने की बात की है। आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था। आपको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो भी महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत हम सबको आपने
उपकृत किया एक ढंग से कि इतने कम समय में आपने जितनी भी दी और अपना कीमती समय आज का हमें दिया और इतना मूल्यवान वक्तव्य आपने प्रस्तुत किया। हम सब ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर के गार्जियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म की तरफ से आप सबका आपका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं और डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य जी का बहुत आभार कि उनके कारण आप जैसी विदुषी इस कार्यक्रम में जुड़ी। आपका बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।